बीस साल आग و خون برسانے کے بعد امریکہ نے طالبان کی ڈیڈ لائن پر افغانستان مکمل خالی کر دیا۔ 31 اگست سے پہلے ہی آخری امریکی فوجی میجر جنرل کرس نے بھی افغان سرزمین چھوڑ دی۔ امریکہ سے نجات پر کابل میں زبردست آتش بازی۔ امریکی انخلا کے بعد طالبان کابل ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے۔ طالبان کی اسپیشل فورس بدری 313 نے کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ فلک شگاف نعرے لگائے، سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ساتھ بدری فورس نے فوٹو سیشن بھی کیا۔ طالبان کی موج بستیاں، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی جہاز میں بیٹھ کر سیلفیاں بناتا رہا۔ طالبان جمعے کو نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کریں گے، روسی نیوز ایجنسی کا دعویٰ۔ امریکہ نے کابل ایئرپورٹ چھوڑا نہیں، تباہ کر دیا۔ جاتے جاتے کابل ایئرپورٹ میں توڑ پھوڑ مچا گئے، فرنیچر، کھڑکیاں توڑ ڈالی، آلات بھی جگہ جگہ بکھیر دیے۔ امریکی فوج نے اپنے طیارے اور اسلحہ ناکارہ بنا دیا، طیاروں کو ناقابل استعمال اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ناکارہ بنایا۔ امریکہ نے ڈرون حملے میں اپنے ہی ساتھ کام کرنے والوں کو بھی مار ڈالا۔ کابل ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سامنے آ گئے۔ حملے میں ہلاک شخص کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس نے خاندان کے 10 افراد کو کھو دیا۔ میرا بھائی 17 اور بھتیجا 6 سال امریکی اداروں میں رہے اور ان کے لیے کام کیا۔ اہل خانہ کا انصاف کا مطالبہ۔ امریکہ کے جاتے ہی بھارت نے طالبان سے رابطہ کر لیا۔ قطر میں بھارتی سفیر اور طالبان رہنما کے درمیان ملاقات دوحہ میں بھارتی سفارت خانے میں ہوئی۔ ترجمان بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے، بھارتی شہریوں کی بحفاظت واپسی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ طالبان کی افغانستان کے ہوائی اڈوں کے لیے ترکی اور قطر سے بات چیت۔ افغان ہوائی اڈوں پر ایئر سروس کا فقدان۔ بلخ کا مولانا جلال الدین ایئرپورٹ قومی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ افغانستان کی ایک 40 سالہ ایک دکھوں کی ایک داستان ہے، وہ ختم ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جو افغان عوام ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے اور ہم آگے ایک مستحکم افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اپنے روابط اور مضبوط کر پائیں گے۔ افغانوں کے دکھ کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ 40 سال کے دکھوں کی داستان ختم ہوگی۔ وفاقی کابینہ کا افغان عوام سے اظہار یکجہتی اور نیک خواہشات کا اظہار۔ فواد چودھری کہتے ہیں، پہلے دن سے انخلا میں مدد کی کمٹمنٹ ہے۔ نیٹو اور اس سے متعلقہ 10,302 افراد پاکستان آئے، 9,032 اپنے آبائی ممالک چلے گئے۔ PIA واحد ایئر لائن ہے جو امداد لے کر مزار شریف اتری۔ وزیر اطلاعات نے کہا، شہباز شریف اور بلاول نے انتخابی اصلاحات پڑھی تک نہیں، اپوزیشن کو شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑا تو کر لے گی، حکومت کی مخالفت ہی کریں گے۔ پی ڈی ایم کا استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں بنتا۔ اب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو امید ہے پہلے استعفیٰ دیں گے۔ ہر ہفتے لانگ مارچ کا اعلان کرنا اور اس سے پھر جانا سیاسی نقصان نہیں تو کیا؟ بلاول بھٹو زرداری کی تیر اندازی۔ کہا، عوام نے نون لیگ کے بعد خان صاحب کی کارکردگی بھی دیکھ لی۔ عوام عمران خان کی نااہلی کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ عوام جان چکے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس نہ ملنا زیادتی ہے۔ PMDA کے ذریعے آزادی ہزار رائے پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آرڈیننس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، افغان صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا سی پیک کے خلاف تمام سازشوں کو خاک میں ملانے کے عزم کا اعادہ۔ چینی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ افغانستان کے تناظر میں چینی سفیر کا پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ پنجاب میں کورونا میں تیزی۔ کورونا کیسز 3 ماہ کی بلند ترین شرح پر پہنچ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 53 اموات بھی پنجاب میں ہوئی۔ ملک میں کورونا سے 24 گھنٹے میں مزید 118 افراد جان سے چلے گئے۔ 3,838 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.36% رہی۔
सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को वैक्सीन लगाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा तालीम को इंतजामात की हिदायत। कोयटा में वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। बूस्टर डोज किसको, कितनी और कैसे लगेगी, तफसीलात सामने आ गईं। डोज सिर्फ बैरून मुल्क जाने वाले 12 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। मुताल्लिका मुल्क की मखसूस वैक्सीन की शर्त का सबूत देना होगा। 12 से 17 साल उम्र वालों को फाइजर और 18 साल से जायद उम्र होने पर साइनोफार्म और साइनोवैक का बूस्टर लगेगा। कमजोर मुदाफियत वाले अफराद को बूस्टर डोज नहीं लगाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 कमी, नई कीमत ₹118.30 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.50 कमी, मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.50 कमी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर आजम इमरान खान से जर्मन वजीर खारजा की मुलाकात। अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान जर्मन चांसलर से होने वाली गुफ्तगू का भी जिक्र किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, जर्मन चांसलर से फ़ोन पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते और पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मौसर किरदार जारी रखेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हम मनसब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सूरत हाल मामूल पर लाने में मदद कर रहे हैं। आलमी बिरादरी को ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगाकर मुस्तक़बिल के रास्ते का इंतखाब करना होगा। अशरफ गनी हुकूमत सब अच्छा है की तस्वीर पेश कर रही थी। हमारी तैयारी पूरी है, कोई गलतफहमी में ना रहे। जो सियालकोट में आपने खेल खेला या आज़ाद कश्मीर में लाहौर में न चलाएं, नुकसान हो जाएगा। अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो वो गलती करे। अगर हमारे किसी कारकुन को पुलिस ने पकड़ा, उसी वक्त रद्द-ए-अमल होगा। तो पहले ही हुकूमत बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, इस बारूद के ढेर को चिंगारी न दिखाएं। नून लीग का कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में हुकूमत पर मुदाखलत और धांधली का इल्जाम। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, हुकूमत बारूद के ढेर पर बैठी है, मुनासिब होगा चिंगारी ना दिखाए। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन होने दिया जाए। सरकारी पार्टी खरीदो फरोख्त का धंधा बंद करे। हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब के इंतजामी मामलात से खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमत को गवर्नेंस की अलिफ बे का पता नहीं। ताजिर, डॉक्टर्स और मेट्रो बस के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, मगर हुकूमती ऐवानों में किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। विफाक से बैठकर पंजाब में हुकूमत चलाने का तजुर्बा नाकाम हो चुका। कराची वालों, छतरियां निकाल लो। कल से 3 सितंबर तक कराची में तेज बारिशों का इम्कान। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल, कई शहरों में बारिश। शहर कायद पर बादलों के डेरे। मलीर, गुलशन हदीद और सुपर हाईवे पर बारिश। कराची के सबसे बड़े बरसाती नाले की सफाई की अबतर सूरत हाल। गुज्जर नाले में सफाई का काम हुआ, फिर इंतजामिया भूल गई। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कचरा फिर जमा। तामीराती मलबे का ढेर। तजावुजात गिराने के बाद मलबा गुज्जर नाले में ही गिरा दिया गया। शहर ज़ेरे आब आने के खदशात फिर सर उठाने लगे। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश के बाद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। पाकिस्तान और कजाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मशकें दोस्तम-3 की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेक्टर में हुई। मशकों का मकसद फौजी ताउन बढ़ाना, इंसदाद दहशतगर्दी तजुर्बात का तबादला है। यरगमालियों की रिहाई, इलाका क्लियरेंस का मुजाहरा किया गया। मशकों में फैसला साजी, हरबी तरीकों में तब्दीली समेत बाहिमी रब्त कायम करना था। मशकों में बाहिमी ताउन, किसी भी खतरे को मुश्तरका तौर पर निपटने में मदद मिलेगी। तकरीब में डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग और कजाकिस्तान के हुकाम शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम से किए गए वादे की पासदारी करते हुए अमली इकदाम उठाए हैं। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट 3 डिवीजन और 11 अजला पर मुश्तमिल होगा। पंजाब काबीना का तारीख साज फैसला। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट को खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी। पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, जनूबी पंजाब 11 अजला पर मुश्तमिल होगा।
तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा, मीनार पाकिस्तान वाक़े के तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी और जानी नुकसान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया, एक्शन शुरू। SBCA ने मेहरान टाउन में 20 से ज़ायद फैक्ट्रीज को सील कर दिया। फैक्ट्रीज को रिहायशी प्लॉट्स पर कायम होने के बायस सील किया गया। पुलिस SBCA के मुअत्तल अफसरान से पूछगछ के लिए पहुंची। कोरंगी टाउन के ड्यूटी अफसरान दफ्तर छोड़कर चले गए। DG SBCA सलीम रजा से भी पुलिस हुकाम की पूछगछ। हुकाम ने बताया, बिल्डिंग का नक्शा साबिक DG मंजूर कादिर काका के दौर में पास हुआ। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रोजवेल्ट होटल की माली मुश्किलात के तदारुक के लिए ताउन की समरी मंजूर कर ली। हुकूमत $1 करोड़ फराहम करेगी। ECC ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए 21.5 करोड़ की ग्रांट भी मंजूर कर ली। निजकारी कमीशन ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब कर ली। कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकार 30 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। अब कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन लगे या नहीं, तदरीसी अमल नहीं रुकेगा। कोरोना के बायस 2 साल से तालीमी सिलसिला तातुल का शिकार रहा। जामे कराची ने ऑनलाइन रिसर्च सेंटर बना दिया। रिसर्च सेंटर से तलबा और असातिज़ा दोनों मुस्तफीद हो सकेंगे। लेक्चर मिस होने की सूरत में तलबा रिकॉर्डेड लेक्चर से भी मुस्तफीद हो सकेंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। KB बोर्ड ने टीम को दौरा पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक बोर्ड को सिक्योरिटी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर इत्मीनान है। KB कप्तान टॉम लैथम कहते हैं, बांग्लादेश सीरीज के बाद हमारा फोकस दौरा पाकिस्तान पर होगा। सिक्योरिटी माहिर रेग डिकासन के काम पर मुकम्मल एतमाद है। न्यूजीलैंड की टीम 11 सितंबर को चार्टर्ड फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचेगी। दौरे में 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। PCB का चेयरमैन बनने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने झूठी खबर शाया करने पर भारतीय अखबार की सरजनिश कर दी। ट्वीट में कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया की बेबुनियाद खबरों से उनकी साख को नुकसान होगा। चेयरमैन PCB एक खास ओहदा है और उसमें उनकी कभी दिलचस्पी नहीं रही। गुजरांवाला के पहलवान ही नहीं, पहलवानी गोला भी मशहूर। पहलवानी गोले में खुश्क मेवाजात, मुरब्बे और खोया शामिल। पहलवानी गोला खाने वाले हाथ नहीं रोक पाते। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2140 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।